For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. While the world at large has a divided opinion on Sonu Nigam's tweet against the use of loudspeakers during Azan, actress Renu Shahane has expressed her take on this issue with a strong post voicing her opinions. Hum Aapke Hai Kaun lady began her post with memories of being woken up during childhood to the prayers to the Lord. Noise has become an integral part of any religion and celebration. Renuka also enumerates how we cannot enjoy any event without noise and inconvenience to others. While she does seem to have the desire for this to change and let civic sense rule, she does believe that Sonu did nothing wrong by voicing his opinion, though she feels that the tone and manner of saying things should have been more subdued and politically correct. So do you agree with Renuka's stand? Let us know what you think about it by commenting in the section below. Sonu Nigam made a smart move by getting his head shaved off, thus leaving no room for protesters who threatened to have his head clean bald. Sonu's tweet regarding the use of loudspeakers at places of worship have landed him in a soup, though there are a lot of people who do support his stand. The Dabangg Khan, Salman showed his solidarity towards Sonu, and so did others including Sunil Grover, Richa Chadda, Vivek Agnihotri and Teleworld's biggest celebrity Divyanka Tripathi Dahiya. Yes, the Ye Hai Mohabbatein star quoted that moderation is the buzzword. Divyanka posted a tweet starring, "Moderation of speaker is important for all. Equal regulations needed for temples, mosques, gurudwaras and churches." Sonu Nigam too cleared his stand by posting, "I have considered Mohammad Rafi as my guru. My driver is a Muslim. We need to be considerate with each other." Well, now that's quite a relief for Sonu that so many industry insiders are supporting him. But what is your take on this unfortunate incident? Let us know by commenting in the section below. परिणीति, अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि आपके फादर एंड प्रियंका के फादर गाया करते थे भजन वगैरह सारा कुछ, और आप लोग उनके सामने खड़े होकर के बात करते थे. इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में एक डिबेट चल रही है कि जो भजन या अजान के टाइम पे लाउड स्पीकर्स नहीं यूज़ करने चाहिए. कितनी स्मार्टली दो क्वेश्चन जिनका कुछ लेना देना नहीं है एक दूसरे से. Of course. जी. बॉलीवुड की हम बात करें, जब बहुत जिम्मेदारी होती है, जब भी आप कुछ कहते हैं, एक सोनू निगम के लेवल का सिंगर उठ के कुछ इस तरह की बात कहता है जो नहीं कहनी चाहिए. कुछ उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो कह सकते हैं, कुछ एतराज भी कर सकते हैं. What's your take on that? On a celebrity expressing his opinion or on the issue? I don't. लाउड स्पीकर्स नहीं होना चाहिए. गुरुद्वारे में होने वाले साउंड से भी एतराज कर रहे हैं. जो भी प्रेयर होती है वो शांति से हो, लाउड स्पीकर लगाकर ना. शांति से. I really feel दुनिया में हर इंसान को, you, me, anybody has their opinion, how they want to share it. चाहे उनको घर में डिस्कस करना है या ट्विटर पे लिखना है या जैसे भी करना है, I think that is their opinion. I personally have no opinion on this. मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ. I think that's the beauty of a nation, yeah. मतलब हमारे डेमोक्रेसी में आप कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं. आपको लोग आपके लिए नेगेटिव भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, फिर भी आप सब जी रहे हैं. I think that's the beauty of a nation, in fact. आपका अपना ओपिनियन होता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा. But I think, of course, being in public eye, you have to be, या आप वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, उस टूल को कैसे यूज कर सकते हैं सोशल मीडिया पे. Sonu Nigam's tweet on the ban of use of loudspeakers during Azan has stirred up quite a controversy, and while the singer still stands by his statement, he has earned the ire of industry insiders and others as well. Sajid and Wajid Khan had been especially vocal about their displeasure, while Pooja Bhatt seemed to be quite cynical about the whole incident.
But surprisingly, Salman Khan has stood by Sonu Nigam and supported this stand. This happened because Sonu had categorically cleared the air stating that he was against the use of loudspeakers and not against azan. While protesters didn't seem too convinced and were hell-bent on making it a political issue, Salman Khan has stuck his guns and maintained that he will stand by Sonu despite earning flack for his supposedly anti-Islamic act. While we wonder if Salman's open support to Sonu Nigam will help to thaw the issue or will it continue to flare, burning more in its wake. Let us know by commenting in the section below. Salman Khan's mother Salma Khan's name is mentioned in the tube-like poster, and with Salman in a very impish, mischievous look, things seems to be really sorted out for the actor, who would also be seen in his upcoming year-end release Tiger Zinda Hai with Katrina Kaif. We love Salman's movies for they are full of charm and spunk and filled with action. However, Tubelight would see a different Sallu winning over the odds and see how good he can make way for some of the best for his fans. Alright, so get geared for the movie, and with his mother's name included in the poster, Salman only shows how much he loves her. We have seen how Salman's family has stood by his side always, and his mom has always been a source of strength. She will obviously be so for the film too. What do you have to say about this? यानी कभी कभी होता है कि मार्केट नहीं चलने की सूरत में, ऐसी सूरत में आदमी जो है यानी मार्केट कैसे हो, मीडिया के ज़रिए से मैं लोगों के सामने कैसा हूँ, मेरी शोहरत कैसे हो, ये इस तरीके से भी चाहता है। और ये गलत शोहरत है। गलत शोहरत के लिए जो है समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। जहाँ तक रहा सवाल इंसानियत का, हम सबसे पहले किसी मजहब से पहले हम इंसान हैं, समझे ना। और इंसानों में इसकी यूनिटी को तोड़ना यानी ये बहुत बड़ा जुर्म है, समझे ना। यानी हमारी आपसी एकता, जैसे हिंदुस्तान की एकता है, एकता को तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म है। समाज के अंदर यानी किसी को कत्ल कर देने से ज़्यादा बुरा फसाद है। यानी मैंने कत्ल किया, ये ज़ाती हुआ, लेकिन समाज में फसाद बरपा हुआ, तो फसाद की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों का सर फूटा, कितने लोगों के घर बर्बाद हुए। यानी ये बहुत बुरी चीज़ है। हाँ, ज़ाती मैटर में आदमी का ज़ाती नुकसान होता है, लेकिन फसाद में सारे ही लोग, जिसमें मासूम भी आ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता, ऐसे लोग भी यानी इसकी वजह से जो है यानी नुकसान में पड़ते हैं। लिहाजा ऐसी बातें जो किसी समाज को नुकसान पहुंचाए और समाज इश्तियाल हो और समाज में पैदा हो, ये ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा था कि मुझे अजान से प्रॉब्लम है, उन्होंने हुजूर के बारे में भी कहा था कि हुजूर के वक्त तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो इसीलिए लोग अजान बजा रहे, और गुंडागर्दी का नाम दिया था। फिर जब लोगों ने उन्हें गाली देना शुरू किया तब उन्होंने ये कहा कि नहीं, मुझे मुस्लिम से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अजान से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो लाउड स्पीकर पर जो बजती है उससे प्रॉब्लम है मुझे। एक्चुअल क्या है, देखो स्पीकर जो होता है ना, स्पीकर ये असल में आवाज़ के पहुँचाने के लिए है, यानी मुस्लिम्स के लिए है। जैसा वो कबीरदास ने कहा कि कंकर पत्थर जोड़ करके मस्जिद ले वो बनाए, हाँ, तो यानी ता पर मुल्ला बाग दे का बहरा हुआ खुदा है, तो खुदा बहरा नहीं है। इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये चार मौजूद हैं, पांचवा प्रेजेंट है। वो जो इस कायनात का, जो इस यूनिवर्स का क्रिएटर है, वो हम सबके साथ है, तो उसको ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूँकि इस वक्त जो मुस्लिम्स को बुलाया जाता है, यानी बेदार किया जाता है कि भाई जो जिस्मानी तुम्हें नेमत दी गई है, जो जिस्मानी नेमत दी गई है, पार्ट्स जो है, यानी इसका शुक्रिया ज़रूरी है। लिहाजा तुम जो है यानी एक इबादत की तरफ आओ, तो इबादत की तरफ आओ का मतलब अगर धीरे से यानी 4 घर तक भी आवाज़ नहीं गई और इलाका बड़ा है, कम से कम 1 किलोमीटर का है, तो ऐसी सूरत में स्पीकर की ज़रूरत है कि ताकि आवाज़ को पहुंचाया जाए। अब कोई इस पर ऑब्जेक्शन करे तो ऑब्जेक्शन करे, तो मैंने पहले ही बात कहा कि क्रॉस जो है ये समाज नहीं चलेगा, क्रॉस समाज को तोड़ देगा। आप बोलेंगे कि हम मूर्ति पूजा करेंगे, हम बोलेंगे हम नमाज़ पढ़ेंगे, तो ठीक है आप करते रहो, हम पढ़ते रहें, लेकिन बोलेंगे हम तुमको नमाज नहीं पढ़ देंगे, वो बोलेगा हम तुमको मूर्ति पूजा नहीं करने देंगे, ये ऐसा समाज चलेगा नहीं, ऐसा समाज सत्यानाश हो जाएगा। दोस्तों, रिसेंटली सोनू निगम ने अपने रिलीजियस व्यूज़ बताए हैं मुस्लिम्स की अजान के ऊपर। वो कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो ये अजान कहाँ से आ गई। उनका कहना है कि ये सब गुंडागर्दी है। सो लेट्स गो आउट एंड आस्क पीपल, उन्हें क्या लगता है कि क्या ये सच में एक गुंडागर्दी है। एक मौलाना ने उनके ऊपर एक चैलेंज डाला है कि जो कोई उनके बाल काट के ला के उन्हें देगा तो मौलाना उसे 10 लाख देंगे। मौलवी ने बोला तो उसे मैं सब ट्रोल करने के लिए किया है, बहुत और कुछ नहीं। वो मुंडन करना, टकला करना, तो मुझे लगता है शो ऑफ है।
मतलब किसी की मतलब बोलते ना, अगर हमको कोई पसंद नहीं आता वो काला झंडा दिखाते हैं। ऐसे किसी को चैलेंज करो, ऐसे पहली बात तो ऐसी चैलेंज देनी नहीं चाहिए थी। हाँ, उन्होंने गलती की, कुछ गलत बोला, उसकी और कुछ सजा दो आप। वो एक्चुअली डर रहे हैं कि उनको कोई मींस 10 लाख का वो दिया है कि उनको जो भी पकड़ के उनके बाल कटाएगा और चप्पल के हाथ डालेगा, तो वो डर के मारे उन्होंने ऐसा करे हैं और कुछ नहीं है। To that Maulana, instead of giving that 10 lakhs to a barber, just give it to some orphanage, man. That would be much better. लेकिन बदनाम होने के बाद, अभी मुंडन कराने के बाद उसको ऐसा लगता है कि भाई मैंने सॉरी मांगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको पब्लिक के सामने बोलना चाहिए कि सॉरी मेरा गलती हुआ है, और रिलीजियस के बारे में कभी किसी के रिलीजियस के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जाहिर सी बात है, उन्होंने ऐसे इसलिए किया कि उनकी जान को भी वो हो जाए और लोगों का जो भड़का हुआ, मतलब जो फैंस उनके दुखी हुए हैं, वो मतलब दुख उनका हट जाए। और ऊपर से उसने ऐसे बाबर को बुलाया, सब ऐसा मीडिया को बुलाया जानबूझकर दिखाने के लिए। तो ऐसे किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए था, और जो मतलब ये गलत है, मैं मानता हूँ कि ये गलत है जैसे उन्होंने कहा। अब सब गलत है, फालतू है कि बाल मुड़वा देंगे तो 10 लाख रुपए देंगे, ये सब फालतू चीज़ है। इस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। लोगों को अच्छी चीज़ और अच्छी बात बतानी चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे, फ़ायदा पहुँचे। This is the best way of apologizing, I think. So people should not react more on this. He has done his part. He has apologized. So that's it, man. उसने चाहा कि भैया 10 लाख रुपए जो है वो मुझे मिल जाएगा, और मैं किसी भी लोगों को, गरीब लोगों को डोनेट करूंगा, क्योंकि उसको कम से कम करोड़ों की पब्लिसिटी मिल गई है अभी। Problem with loudspeakers, whether it is a mandir, masjid or gurudwara, anything. So what do you have to say about his change of statement? स्टंट के लिए किया है, अपना नाम कमाने के लिए किया है। जब किसी के भी रिलीजन या फिर किसी के मतलब मजहब से हम मतलब उनसे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ऐसे किसी धर्म पे ऐसे वो डायरेक्ट उंगली नहीं उठा सकते, कुछ नहीं कर सकते। Okay, I think actually he's afraid now because of the controversial comments and all that stuff, I guess. यहाँ पे लोग सब इंडिया में रिलीजन से उसको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, लिंक कर देते हैं। And that's pretty much it. So he shouldn't have changed his statement, I guess. So अगर हमें हिंदू, अगर हमारे मतलब मंदिर में घंटा बजती है तो मतलब बाजू वालों को प्रॉब्लम होती है, फिर भी वो मतलब सहन करते हैं। तो अगर मैंने कुछ बोल दिया तो उसको रिलीजन से रिलेट कर देंगे, फिर ऐसा सब लोग दंगा करेंगे, सब करेंगे। स्टंट है मीडिया की, मीडिया जो है फोकट में मतलब भड़काना चाह रही लोगों को। ये समय लोगों के सामने कैसा हूँ, मेरी शोहरत कैसे हो। वो झूठ बोल रहे हैं, और वैसे तो उनके घर से बहुत दूर है मस्जिद। तो उसमें उसका नाम होना चाहिए, उसका ऐसा था। I don't know about logo के, but for me it's nothing. I mean, come on, man. Come on, India, grow up. मंदिरों में भी जब जागरण होते हैं रात को तो लाउड स्पीकर्स पे गाने बजते हैं। ये इस तरीके से भी चाहता है, और ये गलत शोहरत है। गलत शोहरत के लिए जो है समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करना, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऐसा करेगा ना, आगे का जो उसका करियर है उसके ऊपर इसका इफेक्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि सोनू निगम, ये तो जिस सर का मुंडन उन्होंने करवा लिया, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी है, तो है कि सोनू निगम जी को थोड़ा मतलब कूल डाउन होना चाहिए। मैं भी उसका फ़ैन हूँ, जो मतलब उन्होंने जो गाने गाए और बहुत ही अच्छा, उनका स्वर भी अच्छा है। यस, बिल्कुल मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी एक रिलीजन पे बोला है। अभी उन रिलीजन वालों को तो मतलब दुख होगा ही ना, तो इसके लिए उन्हें तो ज़रूर मांगना चाहिए माफ़ी। That bowling scene is enough itself, so that's it. वो सॉरी के लिए ऐसा कर रहे हैं या पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, तो उनके दिल में है जो वो समझे, लेकिन उनको सॉरी बोलना चाहिए। जो So he should say sorry to all the Indians and all the Muslims and Hindus because he hurt the people. बॉलीवुड की ऐसी ही तीखी मीठी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल मूवीज अड्डा। Until then, signing off. Well, Ranveer Singh has said a no to Salman Khan but has said yes to the Padmavati director Sanjay Leela Bhansali. Yes, you heard us right, and this is getting interesting. We do know that Salman Khan and Sanjay Leela Bhansali were to be together for Bajirao Mastani, but it never happened because it was Ash who was decided for Mastani's role. However, it never happened, and now we are seeing Ranveer say a no to Salman and opting for none other than director Sanjay Leela Bhansali. But Ranveer is busy with Padmavati, his next upcoming with Deepika, where he does not share the same frame, however. The Bang tour is in Hong Kong, Auckland and Melbourne and has surprised element Akshay Kumar in it. Well, with so much happening, Ranveer has opted for the director and not for the Sultan of Bollywood. Wonder what Salman would have to say for this.
The promotion of Kabir Khan's Tubelight has commenced in full swing, and just recently we had shared the first look teaser of the film. And now, after having looked at the numerous fan-made versions of posters, the makers have finally released the official poster of the film. Yes, the official poster is indeed out and it looks nothing short of amazing. Here we spot Salman Khan wearing a pair of boots around his neck and he seemingly does a salute. The background depicts a war in all its gore, setting the pace of the film. The caption, "Kya tumhe yakeen hai?" only adds to the intrigue and draws us closer to the events to be unfolded on screen. All set to release on 23rd June, the film features Salman Khan, Sohail Khan, Chinese actress Suzu and the late Om Puri. While we await the release of the film, do let us know your feedback on the official poster of Tubelight.